Hi, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Why everyone is too late even after me telling them that we already have only 40 minutes and even after informing me that we have 40 minutes, I don't know why we are late. Makes no sense, right? It's like you should be waiting. When does Victor sir leaves you for? Like, can you hear me, guys? 5 minutes. It will be 5 to 6 minutes first only. Okay. So I hope everyone is here now. Okay, Johnny Sai is waiting. Guys, you all join at 9:05. It makes no sense of joining at 9:05. I request you all to join at 9. Otherwise, what will I have to do is, some nakhade wale teachers, 9 baj ke 5 minute ke baad aane nahi denge. So do not make me this kind of things, right? You are mature, you are grown ups now, you are in standard 10. So instead of me giving you dhamki, like, okay, warnings and all, you should understand that, yeah, the class is already of 40 minutes. If I come 10 minutes late, when it's going to teach me. So everyone switch on your videos and unmute your mic. Please switch on your videos and unmute your mic. Yeah. Okay, great. You will talk with Divam and Yaharsh. Have I do I need to tell you all separately? I don't think so. Everyone, tell me first thing. Have you tried exercise of chapter number 2? Kavalle has done exercise of chapter number 2. Have you all done that? I have told you, right, yesterday. Okay, Jonisa has done. Very good, Jonisa. Very good, Kavalle. Very good, Harsh. You guys have done. Okay, everyone. Okay, many of them have not done it. And to be true, in the coming classes, I might not be responsible for the things you have not understood in chapter 2. See, you must understand that if I am giving you some time or some ultimatum to do things, you must do it in the given time instant, right? Otherwise, if we will lack of time, like let's say we will be running lack of time, it would be a great problem for us to solve everyone's question. So I hope you all are here today with your doubts. खाली ऐसे ही उठ के नहीं आ गए. I hope you all have doubts in your mind, and I will be very happy to clear your simplest doubts. But yeah, that can be only for today. और अगर आज खत्म नहीं हुआ doubt, तो probably tomorrow also, but not every day. Okay, let me share my screen because I don't want to waste your time. Yeah, guys, you can now do one thing. Switch off your videos, so that what will happen that you will get a proper bandwidth and you would be able to connect better. Yeah. So I hope everyone has done that. You can mute your mic too, yes, if it is not necessary. And now let us directly jump to the chapter 2. So page number 16, right? Okay, someone is there. Page number 16. I'm going to discuss only the exercises, as I said. And if you have any doubts in this type of questions, right? There are some questions like use your brain power and all. So if you have any doubts, you can ask me. But yeah, I will like this one is not necessary. ये जो questions बीच में है ना, वो अच्छे हैं. अगर तुम करोगे तो तुम्हारे concepts clear होंगे. But इनके doubts मैं आगे भी clear करूँगा. I hope you are understanding. These doubts which are related to these questions which are in the middle of the chapter, I will also give you a chance to ask the doubts from these topics, from this part, even further in the classes. मतलब exercise और theory जैसा नहीं है ये. जैसे मैंने कैसा बोला, exercise तुमने solve किया, अब solve किए हो तो मेरे से doubt पूछो, और नहीं किए हो तो फिर मैं आगे doubt नहीं बताने वाला हूँ. But these things are only constraint. I have the restrictions that I have put, or the rules that I have put, is only for exercise part only.
not for the chapters or not for the questions that are already in the given chapter. I hope you guys are able to understand me, right? Okay. So any doubt in the first one? We are in the column 2 and 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Sir, Yeah. Tell me. sir, I have the atomic number, nucleus, and electrons. In that, I have a doubt. Okay. Simple. What is the answer in second Yeah. column and third column? सी एटॉमिक नंबर लिखा है ना, इसमें देखो क्या मैच कर रहा है. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना. हाँ. और कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मास का बात आ रहा है यानी वो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ये का ऐसा पार्ट होता है एटम में जहाँ का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब भरा हुआ. वहां पे प्रोटॉन भी रहेंगे, वहां पे न्यूट्रॉन भी रहेंगे, है ना न्यूक्लियस में. हाँ. और इसी कारण से न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज भी होता है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में होते क्या है, एक तो न्यूट्रॉन्स जिनका कोई चार्ज नहीं होता और दूसरा प्रोटॉन्स. तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा ना. And electrons? हाँ मैं बता रहा हूँ. अभी यहाँ पे देखो, लाइटेस्ट एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सिंपल सा फंडा है कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है. ठीक है. अब देखो एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास से तो सीधा सीधा चीख कर रहा है ये क्वेश्चन कि भाई मैं ट्रायड हूँ मुझे पहचान दो, मैं ट्रायड हूँ मुझे पहचान दो. और ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट, ये भी चीख के कह रहा है कि भाई मैं ऑक्टेव हूँ मुझे पहचान दो. Octaves. हाँ. एंड पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली किस पे होता है? प्रोटॉन्स पे होता है. बट तुम देखोगे तो यहाँ पे प्रोटॉन्स लिखा नहीं उन लोगों ने, है ना. देखो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, पीरियड है, एटॉमिक नंबर है, ऑक्टेव है और ट्रायड है ना. तो अभी एक और चीज यहाँ पे है, लास्ट ऑप्शन भी कंसिडर करेंगे हम लोग, सिक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिक्वेंशियल चेंज किस में आता है? एक पीरियड में आता है ना, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता है. एक काम करो, ये वाला जो पार्ट है ना पीरियड का, जो आंसर है सिक्वेंशियल चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको तुम अभी ध्यान में रखो. ये मैं तुमको जब रिएक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, या फिर अगला चैप्टर कार्बन कंपाउंड होगा तो उसमें समझ में आएगा. तो तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. अब एज आई टोल्ड यू that atomic number is nothing but numbers of electrons or number of protons, and protons are nothing but the positive charge, right guys? Sir, means atomic number is equal E1 second column मध्ये. मध्ये. yes I also think so. एक बार चेक कर लेना, बट आंसर यही होना चाहिए. ठीक है. Okay. और यहाँ पे तो किसने क्या And in third column? या यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, किसने क्या डिस्कवर किया वो देख लो. मेंडेलीव्स ने क्या डिस्कवर किया था याद करो. न्यूलैंड ने तो ऑक्टेव किया था, है ना. डोबेरिनर ने ट्राइड किया था. मेंडेलीव ने ट्राइड्स. मेंडेलीव ने ट्राइड्स किया था कि डोबेरिनर ने ट्राइड्स किया था? नहीं, सॉरी. अरे सॉरी वो पीरियड. और हेनरी मॉसली ने बोला था ना कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. याद है मैंने बताया था. एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज किसने बताया था? मॉसली ने बताया था. अब रुदरफोर्ड और थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया उसका आंसर हो जाएगा, और थॉमसन ने जो डिस्कवर किया वो देख लो और उसका आंसर वो हो जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइक इट इज वेरी सिंपल. यस. जस्ट सर्च ऑन द गूगल who let me say discovered इलेक्ट्रॉन. अभी इधर सर्च किया क्या है? जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन, है ना. हेलो गाइस, आर यू देयर? yes स्पीक अप. बोलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा. हाँ yes sir. वेरी गुड. और इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? थॉमसन, है ना. और तो फिर ऑब्वियसली अभी जो तुम्हारा रुदरफोर्ड है, अब देख लो रुदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था. तो रुदरफोर्ड, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो गूगल पे रुदरफोर्ड में जाके सर्च किया तो मेरे को पता चला कि who came to be known as father of nuclear physics. ओके, यानी इसका मतलब क्या हो सकता है? न्यूक्लियस. हाँ रुको. अल्फा बीटा एंड मास concentrated in a central positively charged nucleus. लिखा है कि नहीं यहाँ पे? तो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. हाँ. समझ गए सब लोग?
किसी को कोई हाँ, डाउट है इस पार्ट में, मैच दी फॉलोइंग में कोई डाउट, प्लीज आस्क मी, बार बार मौका नहीं मिलेगा। No. ओके, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं नहीं फिर। नहीं नहीं करेक्ट ऑप्शन में रीराइट द सेंटेंस स्टेटमेंट। अब यार ये The सिंपल C1. है, ये मैंने कल बताया था। वन 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 वन। One. अरे भाई, अल्काली पहले का 1 है। कौन सा होता है? एक मिनट मुझे पूछने दो, अल्काली मेटल का ग्रुप कौन सा होता है? 1 2 3 4 18 ग्रुप्स होते हैं ना टोटल। हाँ. अल्काली मेटल का 1 1 One. One. वन, ये पहला ग्रुप वन में होता होता है। Valence. सुनो, अब वन में होता है तो कैसे पता करने का? क्या पूछ रहा है वो? आउटर मोस्ट शेल पूछ रहा है, Valency. वैलेंसी पूछ रहा है। वैलेंस वैलेंस वैलेंसी वैलेंसी पूछता है। वैलेंसी Valency देखने वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना? outermost. Yes. हाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके लिए तुमको पीरियोडिक टेबल रेफर करना पड़ेगा। तो फटाफट जाओ पीरियोडिक Yes. टेबल के पास। यहाँ पे कहीं पे मैंने कल ही बताया था तुम लोग कौन से देखो दिखाता हूँ। ये हाँ बताया था। में ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स है ना, तुम हाँ। देख रहे हो? हाँ तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, एक ही है। तो आंसर 1 हो जाएगा, यानी वैलेंसी जो है एक ग्रुप ही है। ठीक है। ओके, अभी हाँ, नहीं। थर्ड क्वेश्चन में किसी को कुछ doubt? Yeah. Sir, that second question, choose the correct option. नहीं सी हाँ, That C1. सी वाला ना, यही तो पूछ रहा हूँ थर्ड। ओके, सी का। हाँ चलो, मैं थर्ड बोल दिया, तुम सी बोलो। देखो इसका भी फंडा सिंपल है, मैंने तुमको बताया था। क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जाके वापस देखो, क्लोरीन रहता किधर है पीरियोडिक टेबल में? किधर गया पीरियोडिक टेबल मेरा? बाहर हो गया क्या कहीं पे यार? चलो फटाफट डॉट से सॉल्व करना है। तो क्लोरीन किधर है मेरा? अरे यार पीरियोडिक टेबल, हाँ क्लोरीन यहाँ पे है ना, दिख रहा है सबको? क्लोरीन कहाँ पे है? क्लोरीन सेडिमेंट अभी एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा कि जाके नोबल गैस बन जाएगा, बहुत स्टेबल बन जाएगा। कौन बोल रहा है भाई ऐसा बीच में यार? ए हर्ष कीप क्वाइट। पहले मेरा सुन लो तुम लोग, फिर उसके बाद तुम लोग अपना बोलते रहना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोरीन जो है ग्रुप 17 में है ना। अब मैंने तुमको बताया था कि सारे एलिमेंट क्या है यार, सबकी यही आदत होती है स्टेबल हो जाए। अब ह्यूमन बीइंग है तो उसको क्या लगता है, एक जॉब मिल जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, एक फैमिली बस जाए मेरी, मैं सेटल हो जाऊंगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ऐसे ही एटॉम्स भी होते हैं। एटॉम्स को क्या लग रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन मिला ना भाई मेरे को, मैं नोबल गैस बन जाएगा, मेरे को किससे कुछ लेना देना नहीं। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खोजेगा। बट देखो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा हो। समझ रहे हो? अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो देगा कौन? इन्हीं में से कोई देगा ना, इन सारे एलिमेंट्स में से। गाइस बोलो यार कुछ। हाँ ना? हाँ यस यस Yes. अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को, तो उसको कौन देगा? Yes, sir, yes. एक एलिमेंट देगा। अब ये जो सारे हैं नॉन मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है भाई, वो लेते हैं। नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उसे छीन लेंगे, क्योंकि वो स्टेबल होने के कगार पे है। बट ये जो है ना, ये साइड वाले सीधे साधे मेटल वाले लोग, इनका क्या है कि भाई एक दे दूंगा, अगर ये एक दे देगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये 10 वाले पे आ जाएगा, तो ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ पहुंच जाएगा। ये जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, यानी जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन का दान दे देते हैं। समझ रहे हो? यस हाँ, Cl के साथ कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ सकता है, लिथियम आ सकता है। अब तुमको पता हो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला भी होता है NaCl, है ना? हाँ. समझ में आया सबको? समझ में आ गया सबको? यस चलो फटाफट लॉजिक से सॉल्व करने का, रटने का नहीं, लॉजिक से, हमेशा लॉजिक से। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को। सी तो हो गया, अभी इसमें कुछ डाउट? डी में कोई डाउट? ए तो मारेगा, कोई पूछेगा तो मैं मारूंगा। No. चलो थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई P डाउट? block है. क्या थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नो नो अरे ये जॉनिसा और काजल, ये लोग को क्या हो गया भाई? जरा अपना माइक no. करना तुम लोग। जॉनिसा, काजल, प्राचिति, Yes sir. गर्ल्स, व्हाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास? यू नो वी बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। जितना लड़कों से आवाज आ रही है उतनी तुम्हारे तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। अभी तुम बताओ। Okay. हाँ तो बताओ फिर, तुम लोग को आया क्या ये वाला थर्ड? Yes. अरे बोल क्यों Sir. नहीं रहे? हाँ बोलो। Sir, third question का D1. अरे अच्छा चलो पढ़ते। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल?
रिजेंबल यानी एटॉमिक नंबर्स यूनिट ब्रैकेट एटॉमिक नंबर्स दिए। अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है? देखो कि इसको अगर इलेक्ट्रॉन्स शेल में बांटे तो 282 हो गया। तो सिंपल सा बात है कि ये थर्ड पीरियड में है ना, थर्ड पीरियड में कोई सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, Yes. है ना, है ना। Yes. और अगर तुम इन सब Yes, को अगर sir. इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले ऑर्बिट में तो 2 ही जाते हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने जाएंगे? 5, क्योंकि टोटल 7 है ना। 5. अरे भाई तुम लोग को हाँ। क्या हो गया, आज कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं Okay, तुमको okay. ऐसे ओके ओके क्या Sorry, ओके yes, yes. तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ये देखो नाइट्रोजन है, ये पहचान रहे हो इसको, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो अगर इसका ऑर्बिट जाएगा यानी अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में डालेंगे तो पहला वाला सिर्फ 2 ही लेता है, ठीक है, याद रखना। जो पहला ऑर्बिट है इनर मोस्ट वो सिर्फ 2 लेगा, तो जो बचा वो उधर जाएगा 5, है ना। No. अभी बेरिलियम को लेते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। इसमें कैसा 2,2 है ना। तो इसका एर्गॉन, Yes, एर्गॉन yes. में कितना है? 18। एर्गॉन का क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट में 2 जाएगा, सेकंड में 8 2 जाएगा, फिर उसके बाद 8 जाएगा, है ना। 8, 2 8 और 8, 8 8, सुनो 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 सुनो, अभी 8. ये तो पूरा ऑक्टेट 2, कंप्लीट हो गया, 8, यानी ये 8. नोबल गैस आइटम है। नोबल गैस का है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन का कितना हो गया? 17। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ऑलरेडी पता भी होना चाहिए और ऐसे भी पता चल जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है ना। समझ रहे हो? 8, अब 7. तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका क्या था? उसका बोला कि उसका एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है ना। कोई एक्स मान लो एलिमेंट है और उसका ये कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या पूछ रहा है वो, वुड दिस एलिमेंट किन से रिजेंबल करेगा। तो एक ग्रुप वालों की थोड़ी प्रॉपर्टी सेम होती है ना, मैंने बताया था। ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सेम होती है। तो तुम ध्यान से देखो तो और एक और सिंपल फंडा है पता करने का। मालूम है मैं क्या करता था? मैं सिंपली एटॉमिक नंबर याद रखता था। देखो मेरे को आज भी एटॉमिक नंबर याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके सारों का याद है मुझे। तो जब भी मुझे पता करना रहता था कि कौन सा एलिमेंट है तो मैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देता था, तो मुझे 12 आया। तो मैं 12 काउंट करता था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद सोडियम आता है 11th पे, सॉरी वहां लिख दिया यार, नीचे लिखना था। ध्यान से देखो, अरे भाई Na, हाँ सोडियम आता है। सोडियम के बाद क्या आता है किसी को पता है? तुम लोग के पास बुक है फिर भी। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है है ना। Magnesium. ये इस एलिमेंट की बात कर रहा है ये। तो सिंपल सा फंडा है यार कि बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में आते हैं, है ना। समझ रहे हो तुम लोग? इसका आंसर क्या हो जाएगा? Yes. मैग्नीशियम अगर प्रॉपर्टी है तो इसका आंसर बेरिलियम हो जाएगा कि नहीं होगा? तुम लोग को लॉजिकली समझ में आ रहा है ना? मतलब मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूँ, मतलब इनका एक रीजन है। ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर एक रीजन होता है। किसी चीज को रटने से अच्छा उसको समझो कि नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया। बेरिलियम में 4 थे तो मैंने, किधर से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो माइक। फिर उसके बाद एर्गॉन में 18 है तो 288 है, और क्लोरीन में 287 है तो लास्ट में 7 आ रहा है। इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो हेलोजन है यार, इसका तो बात ही नहीं हो सकता। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो नोबल गैस हो गया। तो 2 तो तुम्हारे ऑप्शन में से ऐसे ही कट गए, तुमको सोचना भी नहीं इन दोनों के बारे में। बच्चा ये 2। अब तुम देखोगे कि यार बात कर रहा है वो कि रिसेंबल, और ऑब्वियसली नाइट्रोजन जो होता है नॉन मेटल होता है। क्यों? क्योंकि होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बोरॉन और कार्बन, ये सब नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए। तो अभी मेरा ये एलिमेंट मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला भी एक मेटल ही होगा। इसमें मेटल कौन सा है? बेरिलियम बच रहा है तुम्हारा, है ना। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, एर्गॉन भी नोबल गैस है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और मेटल सिर्फ बेरिलियम है यहाँ पे। समझ में आया आंसर बेरिलियम क्यों होगा? भाई को कुछ बोलता नहीं है, बहुत गलत बात है। हाँ यस सर। समझ में आया। बढ़िया बढ़िया, हाँ, बहुत समझ में आया। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर दिया है, सिलिकॉन का दिया है, हीलियम का दिया है, सोडियम का दिया है और फास्फोरस का दिया है। इन सब का एटॉमिक नंबर दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से पीरियड 3 में बिलोंग करेगा, है ना।
बोला है ना उसने, पूछा है ना उसने कौन सा पीरियड 3 में हाँ, बिलोंग। yes, yes. देखो हाँ सर, हाँ सर। इनके जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना बहुत सिंपल सा फंडा है, हमेशा लॉजिक से अप्रोच करो। लिथियम का कितना है 3, है ना, ठीक है, तो जाएगा कैसे भाई, पहले में 2 चला जाएगा, नेक्स्ट वाले में 1 जाएगा, है ना। बन जाएगा। हाँ, सिलिकॉन का कितना है 14, तो 14 को चलो डालो फटाफट ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में 2 गया, दूसरे ऑर्बिट में 8 गया, 8 जोड़ 8 2 8 8 फिर उसके बाद 4 आ गया थर्ड वाले में। फिर उसके बाद हीलियम है, हीलियम का तो भाई 2 8 4। हो गया, यानी ये तो नोबल गैस है जिसका ऑर्बिट पूरा कंप्लीट हुआ, रोटेट फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया नोबल गैस। फिर सोडियम आया, तो सोडियम का पहले में 2 जाएगा, सेकंड में 8 जाएगा, बचा 1, तो वो 1 आएगा। फिर फास्फोरस है, फास्फोरस का भी कर लो, 2 जाएगा, फर्स्ट में 8 आएगा, फिर उसके बाद 8 + 2 10, टोटल 17, तो ऑब्वियसली आ जाएगा 5 जगह। 5 आएगा। ठीक है, अभी क्या पूछा है, इनमें से कौन सा पीरियड 3 में बिलोंग करता है। अरे भाई इसमें 2 ही ऑर्बिट यूज हो रहे हैं, है ना, ये तो सेकंड पीरियड का हो गया, समझ रहे हो। Yes. हाँ। भाई बोलो थोड़ा, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। Yes, 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 yes. यस सर, यस सर, यस सर। ये हीलियम है, हीलियम में कितने हैं 2, तो यार फर्स्ट ही पीरियड का है, ये तो एक ही ऑर्बिट यूज कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लिथियम भी ध्यान से देखो, 2 ही ऑर्बिट यूज कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि पीरियड 3 है, मतलब 3 ऑर्बिट तो यूज होंगे, तो 3 ऑर्बिट में यूज करने वालों का आंसर मिल गया तुमको, सिलिकॉन, सोडियम एंड फास्फोरस। अभी तुम एक काम करो, जाके पीरियोडिक टेबल में भी देख यस सकते सर, बहुत सिंपल है। हो। एक मिनट भाई बस, ये यहाँ पे फालतू का ये लगा के रखा है, इससे अच्छा मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोल लेता हूँ। आया था अभी ना, हाँ, तुमको क्या ऐसे देखने में ज्यादा आसान है, फालतू में उधर ऊपर जाओ नीचे जाओ, नाटक चल रहा है मेरा। भाई बाई वाई नहीं करना है, खाली फोटो दिखा दो। ये देखो बेटा अभी तुमको दिख रहा है सोडियम थर्ड पीरियड में है ना, दिख रहा है कि नहीं तुमको, ये सोडियम यहाँ पे देखो यार, ये थर्ड पीरियड में है ना सोडियम। हाँ सर। हाँ, और यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब थर्ड पीरियड में, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सिलिकॉन और फास्फोरस और सोडियम, समझ गए। अब ये ग्रुप वाला है वो तुम करो, किया होगा ऑलरेडी, मेरे को बोलने का जरूरत है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज, मैं तो डाउट बता रहा हूँ। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को। अभी डाउट नहीं लग रहा। No, no. वेरी गुड, डाउट नहीं, रहेगा नहीं, अभी तो doubt बाद है। में मत पूछना, मार खाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कोई डाउट, अरे इसका बहुत सिंपल है यार, ये तो तुमको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट साइज आर, ये कौन था बच्चों, हीलियम, हीलियम, ये हीलियम है। Hydrogen. अरे वाह, हाइड्रोजन बोला ये, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Hydrogen. मेरे को तो नहीं लगता, Helium मेरे को और हीलियम लगता है। मैं अभी गूगल हाइड्रोजन। सर्च करते हैं, अभी गूगल सर्च करते हैं, हीलियम लो, क्या करते हो यार तुम लोग। अभी इसका रीजन बता, हीलियम है, हीलियम, हीलियम। द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज। आंसर आने के बाद, गूगल पे आने के बाद तुम लोग बोल रहे हो, मेरे को पता नहीं क्या पता। अभी ध्यान से देखो, हीलियम क्यों होगा उसका रीजन समझा रहा हूँ मैं, उधर जाके भूल मत जाना, एग्जाम में बहुत मारूंगा। देखो ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, बीच में इसका न्यूक्लियस, ठीक है, सुन रहे हो गाइस, कैन यू सी दिस। हाँ सर। Okay, and Yes, let's Yes. wait. हाँ, both of them are having same size, right? Let's say this is hydrogen and this is helium, okay? Helium. थोड़ा spelling थोड़ा ऐसा वैसा हो गया. I hope you understand. Now hydrogen will have 1 electron, right? Right, guys? And helium will have 2 electrons. yes. Now which one is stable, hydrogen or helium? Helium. Yeah, very good. हीलियम, हीलियम। Yes, तो होगा क्या कि हीलियम का स्टेबिलिटी ज्यादा है, हीलियम अपने आप में सेटिस्फाइड है, हीलियम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो हीलियम अपना एटॉमिक रेडियस थोड़ा कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो उसका एटॉमिक जो रेडियस है ना वो कम हो जाता है, हीलियम का हाइड्रोजन से भी कम हो जाता है स्टेबिलिटी के कारण। तो इसलिए हीलियम का साइज जो है एक मिनट, डायग्राम गलत, हाँ, हाइड्रोजन का साइज हीलियम से ज्यादा होता है,
क्योंकि हीलियम स्टेबल होता है तो अपने साइज को रिड्यूस कर देता है। समझ में आ गया सबको? गाइस समझ में आया सबको? Yes. हाँ, अभी नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अभी नोबल गैस कौन सा है? ऑब्वियसली हीलियम ही था ना, अभी तो बताया। हीलियम एक नोबल गैस ही तो है। तो नोबल गैस और सबसे Yes. स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस बीसी का है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर पीरियड में ये लाई करता है। इसके नीचे जो भी है सबका एक एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा। जब उनका एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा तो उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग? Yes. Yes. म्यूट भी नहीं करना, जरा सबको अपना माइक म्यूट करना। क्राइस्ट, माइक म्यूट करने बोला, अनम्यूट करने नहीं बोला। ओके केनेथ, तुम नहीं करोगे क्या म्यूट? ओके तो यार ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसके आगे के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर शॉर्ट नोट्स तो तुमको आना चाहिए यार। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल क्या होता है, स्ट्रक्चर में तुमको बताना है एस पी डी एफ क्या होता है, रोज क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, और इसका आंसर तुम पता करके आओ। और नहीं मिला तब पूछना, तब बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं। साइंटिफिक रीजन तो तुमको पता ही, मैंने सबका बताया। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्योंकि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो आउटर मोस्ट शेल में बढ़ता जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दोनों पास आने की कोशिश करेंगे, और पास आने की कोशिश करेंगे तो रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। तो इसका ये आंसर हो गया। बट इसको अच्छे से लिखना एग्जाम में, ऐसे ही मत लिख के आ जाना। और ग्रुप में जाते वक्त अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्यों एटॉमिक रेडियस बढ़ता है? वेरी सिंपल लॉजिक। एवरी टाइम यू इंटर इनटू ए न्यू ग्रुप, what happens? A new shell is added, right? So that is why atomic radius is increasing, and same group will have the same valency. Why? Yeah, it is also very simple, because of their electronic configuration. उसका आंसर ऊपर डायग्राम में है। The third period contains only 8 elements, even though the electron capacity of the third shell is 18. हाँ, ये सही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी उसका 18 है, तो थर्ड पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट्स क्यों हैं? चलो अब थर्ड पीरियड के पास होते हैं, यहाँ पे खोल के रखा है। ये रहा थर्ड पीरियड तुम्हारा, है ना? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो थर्ड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 18 भले हो, बट होता क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन से तुम उतने ही बांटोगे ना, एक्स्ट्रा तो लाके नहीं दोगे तुम। समझ रहे हो मेरी बात? ये किधर गए सबके सब? इनको ना ऐसा बार बार बुला के। चलो वीडियो ऑन हाँ करो सब। है सर, है सब। वीडियो ऑन करो सब लोग, अपना अपना वीडियो ऑन करो भाई फटाफट। क्या तुम लोग पढ़ पढ़ के नहीं है क्या? जॉनिसा, सियोना, काजल, कैवल, हर्ष, केनेथ, यश, वो तो उधर से मुस्कुरा रहा है। यश को देख के लग रहा है कि वो पढ़ के नहीं है। क्यों तुम लोग पढ़ के नहीं है क्या? एक्सरसाइज मैंने बोला था ना सॉल्व करने के लिए। यार विक्टर सर ने ज्यादा होमवर्क दे दिया था क्या? अरे बोलो, माइक अनम्यूट करो अपना। काजल, सियोना, सर ने ज्यादा होमवर्क दे दिया था क्या? तुम लोग पढ़ के नहीं आए? मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए, फिर भी। Guys, why you're not speaking? I'm expecting an answer from you. Have you not studied? Okay, let me ask specifically by calling names. So first question, Kajal. Kajal, unmute your mic. Unmute your mic, Kajal. Yeah. You did not study, right? Yes. Why? Yeah, give me a reason. There must be a reason. What was the reason? Like you guys are so ignorant. Okay, यार सर आते हैं बोलते जाओ, क्या करना पड़ के? कौन सा पढ़ के मार्क्स आ जाएगा तो कौन सा क्या ही कर लेंगे, ऐसा सोच के बैठे क्या? बोलने के बावजूद क्यों नहीं पढ़ाई की? Okay, wait. Siona, unmute your mic. You also did not study, right? Siona, say yes or no. You studied or not? Did you try to do the exercises? No.
Okay. And do you feel okay? Let me ask. Kevin ने तो पढ़ के आया मुझे पता है. Jonisa, what about you? Unmute your mic, Jonisa. You also Yeah, not. I have studied. Okay. You I have have. studied till question number 5. Okay. Question number 5. Okay. तो पूरा नहीं कर पाए तुम लोग. टाइम बहुत कम था क्या? या क्वेश्चन बहुत टफ थे? थक गए थे कंटा ऐसा कुछ? क्या रीजन क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 तक ही किया आपने. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वैसे मेरे को देखने का. क्वेश्चन नंबर 5. ओके 6 है शॉर्ट नोट्स और 7 है साइंटिफिक रीजन. हाँ 5 इज इनफ. 8 भी करना चाहिए था बट 8 भी सिंपल है. 5 और 8 कर लो. 6 7 नहीं करते तो समझ में आता है बिकॉज 6 7 का लॉजिकल आंसर होता है. तो लॉजिकल आंसर वो डाइजेस्ट से देख सकते हैं या फिर खुद से समझ सकते हैं. बट 6 7 भी करना चाहिए था बट नहीं किया तो ठीक है. बट 5 और 8 भी करना चाहिए था. तो आंसर बॉयज में मेरे को आंसर आ रहा है तो मुझे लगता है कि पढ़ाई किया है. कौन है? केन है ना. केन, डिड यू ट्राई द एक्सरसाइज? No, sir. Okay, do you guys feel that I am just like the other teachers? You can tell me frankly. If you feel that I am just like the other teachers who probably have made Sir, your voice is not coming. Okay, Kaival, let me speak again. So I was saying that do you feel that I am just like other teachers who usually come in the classroom and do not care what you are doing and they will simply complete the syllabus and go? Yash. वो यस बोल रहा है या यश बोल रहा है? Harsh. हाँ हर्ष. Okay, Harsh is asking to you something. Harsh. उसका नेट स्लो है वो. Your अरे net slow. Everyone is able मला to. ऐकायला नाही येत आहे. Okay, what can we do from here? मी Do काय one. करू? Join the class again. Wait, join the class again. मला ऐकायला का नाही येत आहे? मी काय करू? Okay, yeah. So guys, I hope you are able to hear me. कान साफ करके अगले दिन. Give me thumbs up if you are able to hear me. Good. So everyone is able to hear me. So guys, मैं क्या करूँ? Tell me a solution. Like, should I become a teacher like them? Like, okay, this is this and this is this. They will not tell you the explanation, you know. They will never tell you to find an answer. How to find an answer? If you want me to become a teacher like them, I would be probably very disappointed because of this attitude from your side. You know, like I want to be a good teacher, एक अच्छा टीचर और एक अच्छे बच्चे पढ़ते तो फिर there are a lot of productivity in the classroom and there will be a lot of things that you will learn. I know online learning is not easy. I completely agree with that. And the day I will meet you in the classroom offline, trust me, I will explain you everything that you are facing problem with or if you're finding it difficult. Even I can explain here right now. If you will ask me, you have to ask me, right? If you want to do the exercising and you will come in the class just to see the face and enjoy Zoom meetings, it won't be worth. ना मेरे मेहनत का कोई fruit आएगा ना तुम्हारे मेहनत का कोई fruit आएगा. It will be completely waste when you will start solving it. So not every time I'm going to end the classroom because you have not studied. I will give you a warning this time. And I must not say warning because I am no one to give you the warning. You guys are a student. तुम लोग झूठ भी बोल सकते थे, but you were honest and you told me. So yeah, I will give you one more try. Please go today. Try to solve the exercise by your own. ऐसा आंसर रटना नहीं है. Try to find the why. If the answer of the question is beryllium, why is the answer of question beryllium? You have to look for the why. Okay. If you will look for the why, things will become easy for you to understand. And everything. You know? Are you getting me, guys? Try to find the why of the question. So, okay, let me ask today. How many of you will do complete exercise tomorrow and come? Give me a thumbs up. Complete exercise करके आओगे अच्छे से. Why? Why the solution of answer is that? And come tomorrow. Then give me a thumbs up. I can see Kajal, Kaival, Siona, Tony sir, John, okay, Swaroop. Everyone says yes. So I am very happy that you have said yes. Okay. But please do not break the promise. अगर मेरे को एक बात बोला है ना तो करने.
If you have said that you will do it tomorrow and come, I request you to do it tomorrow and come and ask me n number of doubts. But let me tell you, tomorrow will be the last lecture for chapter 2. After that, I will not discuss exercise. I'm giving you one more chance because you guys deserve it. आज तक पता नहीं कैसे टीचर मिले मुझे मुझे पता नहीं. I don't know which type of teachers have you met, but let me tell you, you will enjoy learning with me. If you will learn with me, अगर तुम्हारे अंदर लर्निंग का क्यूरियोसिटी है, if you are interested in science, you will enjoy it with me. वो ऑनलाइन का चलते थोड़ा ये हो रहा है, इंटरेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, कम्युनिकेशन उतना अच्छे से नहीं होता. I understand. But trust me, if you will try to learn, you will enjoy learning with me. So as everyone has said here now, there are 13 people here in this classroom. And all 13 of them have said that they will learn and come tomorrow. They will complete the exercise and then they will come tomorrow. So I want you all to come tomorrow, okay? कल आओ, एक्सरसाइज अच्छे से करके आना और किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है ये पता करके आना. जैसे एक फिलिप्स से उसका आंसर 1 है ना, वो उसका वो एल्कली मेटल का ग्रुप नंबर क्या है, तो उसका आंसर 1 क्यों है ये पता करके आना. This is what I want you to find. I do not want you to only find the solutions. I want you to find why is the solution. The solution क्यों है उसका. You guys, thank you so much for the day. You can leave, go, have fun, but please try to take out some time to do this exercise and come tomorrow. We will meet tomorrow again, okay? Guys, unmute your mic. Unmute your mic, everyone. Anissa, you will do it tomorrow, right? Yes. Okay. Yes. What about you, Sivana? And Yash? Yes, Your sir. voice is not coming. Okay, Kajal, I understand that not the class is going to end in 2 minutes. I will upload the videos on YouTube also. You can refer the classroom. कल वाला जो डाला था वो देखा तुम लोगों ने? कल जो क्लासरूम का डाला हाँ था, देखा ठीक था ना वो? देखा हाँ. So yeah, okay guys, you can leave. Correct. Yeah, you can leave for the day. Thank you so much. Please join tomorrow with all your doubts. Bye everyone. Bye, sir. Bye bye. Take care.